मां त्रिपुरा संजी के साल से चरणों में प्रणाम कर पशु से भी बदतर जीवन की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। के लिए अब मैं यहाँ पर एक ऐसी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी त्रिपुरा सरकार कहा तो जाता था सभा को कि गरीबों की सरकार है, बसाहतियों का, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, उसका निरीक्षण करने के लिए गया था। मगर ये सरकार ने और वहां ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए लगभग 400 कोई कदम नहीं उठा। बहुत 2018 में यहाँ पर सुविधाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मन को 19 में फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने, आनंद की अनुभूति। और 2020 में 38,000 परिवारों का पूरा 25 साल व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी पशु से भी बदतर उनके कैंप पीने के पानी बीच के रास्ते तीन के अच्छे पक्के मकान সমবায় মন্ত্রী हर कैंप के অমিত শাহজি আমাদের মাঝে এসেছেন। আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় সাংসদ जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका अधिकार मिला। और मैं त्रिपुरा को भी देखता हूं तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है, विप्लव और हर घर में बिजली का कनेक्शन। मैं तो जब तक लाल भाई और आज बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं माध्यमिक त्रिपुरा में एक नए विकास का युग शुरू। इतने लंबे समय से मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था। सारे शरणार्थी भारतीय जनता पार्टी प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे हम, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था। रोजगारी में भी बढ़ोतरी करी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के একটা একাত্ম যে বৃদ্ধি করা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আজকে আমাদের 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। সেটাকে আরো যাতে বেশি করে আমরা করতে পারি, প্রতিটা রাজ্য যদি চেষ্টা করে তবেই সেটা সম্ভব হবে।
তবেই আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কোনো মানে যে মিনিস্ট্রি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে এবং এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তাভাবনা সেটা অবশ্যই এই যে ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এই সমবায় মন্ত্রকেরও উনি দায়িত্বে আছেন। উনি আসার পরে আমরা একটা ভাইব্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমবায় সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে। আমাদের যে বিভিন্ন যেসব পরিকল্পনা এখন আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আরম্ভ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে প্রতিটা জিপি এবং বিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও 741টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি এই দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয় এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস কোথায় কে কী করছে তাদের অবস্থা তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু মানে সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোর পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায় এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা সেটা এফপিও সেটা তৈরি করা। জেনেরিক মেডিসিন এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র সেটাকে উন্নত করা। রপ্তানি ক্ষেত্র প্রত্যয়িত বীজ জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার চিন্তাভাবনা করেছে। সমবায় সমিতির জন্য আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয় সমৃদ্ধ হয় তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তাভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে এখানে আসার জন্য আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময় ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी
आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं, हम यहां पर 2-3 साल डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं, आपको मछली पालन को भी कम से कम 30 प्रमोट कर दाम ज्यादा दिलाएगा। की आय को आपकी भूमि कोई शंका और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक खेती सर्टिफिकेशन कराई। हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, डेयरी को भी, पृथ्वी का तीसरी वातावरण भी अच्छा रखती है, कम से कम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं बाजार में आपकी भूमि ढेर सारी आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है। ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए, और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है, और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है, और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है, 57 में से 41 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद।
वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, Home and Cooperation Ministry. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our Honorable Sir. I now request त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, के स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र का रिमोट कंट्रोल त्रिपुरा के दबाकर पूर्व वर्चुअल मोड के मुख्यमंत्री और माध्यम से सांसद उपरोक्त पहलों का लोकार्पण श्रीमान करें। विप्लव कुमार देव जी, श्री शुक्लचरण नोतिया जी, सहकारिता मंत्री त्रिपुरा सरकार, साथ ही सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार अगरतला तालियों के साथ अभिनंदन नगर करें। निगम के महापौर श्री दीपक मजमूदार जी, आशीष भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा के और आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय में सहकारिता के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, पूर्व मुख्यमंत्री और नमस्कार, प्रणाम। श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, सबसे पहले माँ त्रिपुरा सिंदूरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को सच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। ये माननीय 38,000 केंद्रीय परिवार मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके कर कमलों से इन 4 पहलों का उद्घाटन करने के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। সবাইকে নমস্কার। আজকের এখানে সমবায় সম্মেলন 2024 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান, যাকে আমরা সহকার্যে সমৃদ্ধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের মাঝে আজকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী অমিত শাহজি আমাদের মাঝে এসছেন। আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয় এবং আমাদের আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী আশিস কুমার ভুটানিজি এবং ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী জে কে সিনহাজি, যিনি একটু আগে ওনার স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যা
শীর্ষ সমবায়ের কর্মকর্তাগণ, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত কর্মকর্তাগণ, সমবায় সমিতির বিভিন্ন স্তরের যারা কর্মচারীরা আছেন, সমবায় দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারী তথা মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং আমার সামনে আমাদের ক্যাবিনেটের যারা আমাদের সহকর্মীরা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং যারা বিধায়কগণ আছেন, বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিরা, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন, সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি আমাদেরকে অনেক মার্গদর্শন করবেন। ত্রিপুরাতে এখন জিএসডিপি এখন পর্যন্ত আমাদের 8.9% আমাদের গ্রো করেছে। পার ক্যাপিটা ইনকাম 2024-এ 1,77,773, যেটা 2023-এ থেকে আমাদের অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে, প্রায় 1,57,364 ছিল। অর্থাৎ যদি 2012-এর সাথে আমরা তুলনা করি, প্রায় দ্বিগুণ আমাদের জিএসডিপি ত্রিপুরাতে বেড়েছে। কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন কম্পিটিশনের সমস্ত আমাদের নর্থ ইস্টের যে অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের সাথে আমরা দেখলাম আমাদের কিন্তু এখন অনেক বেশি আরও পরিশ্রম করতে হবে এবং বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত, আমাদের জিএসডিপি এই সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের অবশ্যই আমাদের বাড়াতে হবে। সমস্ত নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটের সাথে আমরা একটা হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেটা আমরা করব। এবং আজকের এই যে আয়োজন, সেই আয়োজনের মাধ্যমে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমরা কি আমাদের রূপরেখা এবং আমাদের দিশা নির্দেশিকা সেগুলো সম্পর্কে আজকে আলোচনা হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রীজি থাকার ফলে মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে আমাদের সুযোগ আসবে, যাতে সচেতনতা যাতে আরও বৃদ্ধি হয় এবং তাতে করে মানুষ সমবায়ের প্রতি কিন্তু মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং সেটা প্রগতির সাথে একটা একাত্ম যে বৃদ্ধি করা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আজকে আমাদের 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে, সেটাকে আরও যাতে বেশি করে আমরা করতে পারি, প্রতিটা রাজ্য যদি চেষ্টা করে তবেই সেটা সম্ভব হবে, তবেই আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কোনো যে মিনিস্ট্রি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে এবং এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তাভাবনা সেটা অবশ্যই এই যে ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এই সমবায় মন্ত্রকেরও উনি দায়িত্বে আছেন। উনি আসার পরে আমরা একটা ভাইব্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমবায় সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে। আমাদের যে বিভিন্ন যেসব পরিকল্পনা এখন আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আরম্ভ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, যে প্রতিটা জিপি এবং বিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও 741টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি এই দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয় এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস, কোথায় কে কী করছে, তাদের অবস্থা
তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু মানে সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোর ই পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায় এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা, নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা সেটা এফপিও সেটা তৈরি করা, জেনেরিক মেডিসিন এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র সেটাকে উন্নত করা, রপ্তানি ক্ষেত্র, প্রত্যয়িত বীজ, জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার চিন্তা ভাবনা করেছে। সমবায় সমিতির জন্য আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়, তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তা ভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে এখানে আসার জন্য, আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময় ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी को कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही एनसीओएल आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। ये ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहां पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है।
इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए, और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है, और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है, और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है, 57 में से 41 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, Home and Corporation Ministry. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our Honorable Sir. I now request
आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डोनर और दूरसंचार मंत्री श्री माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, इस महत्वपूर्ण श्री प्रेमा खांडू जी, मुख्यमंत्री उपस्थित अरुणाचल प्रदेश श्रीमान ज्योतिरादित्य, मेरे साथी मंत्री श्री सुकांतो मजबूदार जी और दूरसंचार मंत्री गोविंद मोहन जी, श्री माणिक सचिव जी, श्री चंचल कुमार जी त्रिपुरा, सचिव वित्तीय सेवा विभाग श्री एम नागराजू जी, मुख्यमंत्री उपस्थित अरुणाचल प्रदेश श्रीमान ज्योतिरादित्य, मेरे साथी मंत्री श्री सुकांतो मजबूदार जी और दूरसंचार मंत्री गोविंद मोहन जी, श्री माणिक सचिव जी, श्री चंचल कुमार जी त्रिपुरा, सचिव वित्तीय सेवा विभाग श्री एम नागराजू जी और वित्त पोषण से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं आज मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर स्वागत करता हूं। यहां पर बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 उसका एक ध्रुव वाक्य लिखा है, सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ। ये महान चाणक्य का उद्घोषित सिद्धांत है। इसका मतलब व्यक्ति से जोड़कर नहीं है, राष्ट्र से जोड़कर है। कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख अर्थ। तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। ये चाणक्य का सूत्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांतों में से एक है। और आज यहां पर हम सब उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग नॉर्थ ईस्ट, जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा सम विकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के
आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं। रिकॉर्ड तोड़ेगा इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट बैंक इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया। सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित है और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी है। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर फाइनेंस के लिए, किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो या पर्सनल लोन का, इसके लिए पैरामीटर्स आपने जो बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन बनाई है, नाबार्ड ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो पूरे देश की गाइडलाइन, वही गाइडलाइन नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए क्या? कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की और पूरे देश की गाइडलाइन एक नहीं हो सकती। जरूरियात है नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैरामीटर्स के साथ फाइनेंस की गाइडलाइन। और मैं आज कहना चाहता हूं, सेक्रेटरी बैंकिंग, चेयरमैन नाबार्ड, आरबीआई और एसबीआई की ये जिम्मेदारी है कि एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ जो नॉर्थ ईस्ट की अभी की कैपेसिटी है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गाइडलाइन फाइनेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है। यहां बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट का गेटवे बनने वाला है। कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स चेंज कर लिए गए। उस वक्त आजादी के बाद भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के अंदर था। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में और रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पहल कर कर आजादी के 75 साल बाद संविधान को सुधार कर बांग्लादेश से वार्ता कर कर बांग्लादेश और भारत के एन्क्लेव्स का एक्सचेंज का काम किया। इसके कारण आज हमारे वाटरवेज चिटगोंग के साथ जुड़ चुके हैं और चिटगोंग की बंदरगाह पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपना उत्पाद दुनिया के साथ भेजने के लिए आज खुली पड़ी है। और इसके कारण पहले जो एक प्रकार की एनोमली बनी थी, यहां आबादी कम है, भूभाग ज्यादा है, आबादी कम है तो कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि देश के बाकी भूभाग में भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 to 15% आ जाती थी और दुनिया में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक भी बंदरगाह नहीं। आज आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी उत्पादन करो, दुनिया भर का बाजार चिटगोंग बंदरगाह के थ्रू आपके लिए खुला है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। यहाँ सस्ती बिजली है, सस्ता मैन पावर भी उपलब्ध है और अब एजुकेशन के सारे मायने भी यहाँ पर बदल चुके हैं। एक दृष्टि से सबसे ल्यूक्रेटिव स्थान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। मित्रों, जब मैं आज यहाँ आया हूँ तब इतना कहना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से पूर्ण विकास के लिए कनेक्टिविटी की क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए इसके बाद ही मेरी नेसेक के साथ मीटिंग है। इसरो का उपयोग कर कर
सारे संसाधनों का समुचित उपाय हो, इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। सशक्तिकरण और समावेशी विकास की कई सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं और शांति और स्थिरता भी आई। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने इमोशनल, इकोनॉमी और इकोलॉजी, ये तीनों दृष्टि से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 10 साल अकेले नरेंद्र मोदी जी 65 बार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और 10 साल में 700 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी रात बिताई है। ये बताता है कि भारत सरकार का फोकस क्या है। मित्रों, बैंकिंग के अंदर भारत में ढेर सारे रिवॉल्यूशन 10 साल के अंदर आए। सफल इंसॉल्वेंसी कानून बनाया, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन और 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ की बेड रिकवरी को पूरा करने का काम भारत की बैंकों ने किया है। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में विलय हमने किया और लगभग जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटा करते थे 23-24 में 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है और एनपीए 2.8% से नीचे पहुंचा। ये सब तो हो गया, बैंक सक्षम हो गए। अब मेरा मूल सवाल है, जो सक्षम है उसने रिस्क उठाकर फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। मेरी बात आप मान, ये फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहाँ के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत थ्रस्ट देना से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा। अनबैंक्ड विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, एनईसी का चेयरमैन, मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं संवेदना से देखने की, इसके विकास के अंदर योगदान और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान
हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए। ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर आपके मूल्यवान शब्दों के लिए। इस कार्यक्रम के समापन पर नेटवी के अध्यक्ष एवं प्रबंध
सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं आज मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर स्वागत करता हूं। यहां पर बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 उसका एक ध्रुव वाक्य लिखा है, सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ। ये महान चाणक्य का उद्घोषित सिद्धांत है। इसका मतलब व्यक्ति से जोड़कर नहीं है, राष्ट्र से जोड़कर है। कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख अर्थ। तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। ये चाणक्य का सूत्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांतों में से एक है। और आज यहां पर हम सब उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग नॉर्थ ईस्ट, जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा सम विकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं। रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट बैंकिंग इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया। सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित है और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर फाइनेंस के लिए
किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो या पर्सनल लोन का, इसके लिए पैरामीटर्स आपने जो बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन बनाई है, नाबार्ड ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो पूरे देश की गाइडलाइन, वही गाइडलाइन नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए क्या? कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की और पूरे देश की गाइडलाइन एक नहीं हो सकती। जरूरियात है नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैरामीटर्स के साथ फाइनेंस की गाइडलाइन। और मैं आज कहना चाहता हूं, सेक्रेटरी बैंकिंग, चेयरमैन नाबार्ड, आरबीआई और एसबीआई की ये जिम्मेदारी है कि एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ जो नॉर्थ ईस्ट की अभी की कैपेसिटी है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गाइडलाइन फाइनेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है। यहां बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट का गेटवे बनने वाला है। कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स चेंज कर लिए गए। उस वक्त आजादी के बाद भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के अंदर था। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में और रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पहल कर कर आजादी के 75 साल बाद संविधान को सुधार कर बांग्लादेश से वार्ता कर कर बांग्लादेश और भारत के एन्क्लेव्स का एक्सचेंज का काम किया। इसके कारण आज हमारे वाटरवेज चिटगोंग के साथ जुड़ चुके हैं और चिटगोंग की बंदरगाह पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपना उत्पाद दुनिया के साथ भेजने के लिए आज खुली पड़ी है। और इसके कारण पहले जो एक प्रकार की एनोमली बनी थी, यहां आबादी कम है, भूभाग ज्यादा है, आबादी कम है तो कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि देश के बाकी भूभाग में भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 to 15% आ जाती थी और दुनिया में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक भी बंदरगाह नहीं। आज आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी उत्पादन करो, दुनिया भर का बाजार चिटगोंग बंदरगाह के थ्रू आपके लिए खुला है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। यहाँ सस्ती बिजली है, सस्ता मैन पावर भी उपलब्ध है और अब एजुकेशन के सारे मायने भी यहां पर बदल चुके हैं। एक दृष्टि से सबसे ल्यूक्रेटिव स्थान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से पूर्ण विकास के लिए कनेक्टिविटी की क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए इसके बाद ही मेरी नेसेक के साथ मीटिंग है। इसरो का उपयोग कर कर सारे संसाधनों का समुचित उपाय हो, इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। सशक्तिकरण और समावेशी विकास की कई सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं और शांति और स्थिरता भी आई। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने इमोशनल, इकोनॉमी और इकोलॉजी, ये तीनों दृष्टि से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 10 साल अकेले नरेंद्र मोदी जी 65 बार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और 10 साल में 700 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी रात बिताई है। ये बताता है कि भारत सरकार का फोकस क्या है। मित्रों, बैंकिंग के अंदर भारत में ढेर सारे रिवॉल्यूशन 10 साल के अंदर आए। सफल इंसॉल्वेंसी कानून बनाया, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन और 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ की बेड रिकवरी को पूरा करने का काम भारत की बैंकों ने किया है।
10 पब्लिक सेक्टर बैंक का 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में विलय हमने किया और लगभग जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटा करते थे 23-24 में 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है और एनपीए 2.8% से नीचे पहुंचा। ये सब तो हो गया, बैंक सक्षम हो गए। अब मेरा मूल सवाल है, जो सक्षम है उसने रिस्क उठाकर फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। मेरी बात आप मान, ये फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहां के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत थ्रस्ट देना से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा, अनबैंक्ड विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, एनईसी का चेयरमैन, मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं संवेदना से देखने की, इसके विकास के अंदर योगदान। और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए, ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर आपके मूल्यवान शब्दों के लिए। इस कार्यक्रम के समापन पर नेटवी के अध्यक्ष एवं प्रबंध
श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डोनर और दूरसंचार मंत्री श्री माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री प्रेमा खांडू जी, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश